I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be all about my SST exam, half yearly exam preparation. So in this video, I'll be showing you guys that how I'm preparing for my SST half yearly exam. So tomorrow is my SST का exam and आज है PL day. So I'll be showing you guys that how I'm preparing for it, and also if you are new तो subscribe कर देना and make sure to watch this video till end क्योंकि इसमें मैं कुछ मेरी secret tips and tricks reveal करने वाली हूँ. So yes, you should watch this video till end. And yes, now get into the video. So I started my day with having this cup of milk, the morning rituals guys. Then I just freshen up, took shower, and then it was 9:14 in the morning. हाँ सुबह सुबह के 9:14 हो रहे थे and I thought that now I should start studying. Well, yesterday it was my PL. Like for SST exam we have got 2 PL. But जिस दिन 2 PL आई भाई 2 PL का कोई सेंस नहीं होता है. I decided to study on this day only because कल तो मैंने समझा था यार टाइम है बाद में पढ़ेंगे बाद में. So finally 1 PL was a waste and I am on the second PL and finally अब तो मुझे पढ़ लेना चाहिए. So firstly I started with making this planner kind of thing, wrote down all the chapters which are going to come and wrote down the criteria how I'm going to study. So all this will be revealed in the video. Make sure to watch this video till end and do not skip in between. So then I decided to study, like to go with history, and kept all of the book, like the rest of the books aside. So starting with history, so the chapter 1 of history is not in my syllabus. We are going, starting with nationalism in India, which is the second chapter. And as you guys can see, I have made like kind of short notes when I was reading this chapter earlier. तो जब मैंने पहले ये chapter पढ़ा था ना, तब पढ़ते पढ़ते I have wrote down a few things like जैसे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा and then whatever I understood from the paragraph I wrote down like साइड में मैंने ऐसे लिख लिया उसे. So firstly I'm going to revise all these short notes. So here's my study table, and then finally I sat down to study history chapter 2, which was nationalism in India, as I just said you guys. So सबसे पहले तो जो highlighted points थे वो पढ़े and उसी के साथ साथ जो notes मैंने बनाए थे वो I started to read. And it is very important to revise all that because हाँ मैंने ये सब कुछ पहले से पढ़ रखा है, but that doesn't mean that I don't need any kind of revision. So I was just revising all those. फर्स्टली लाइक मैंने सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने को इसीलिए लिया क्योंकि सबसे पहले तो इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, जो कि पहला तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया एंड सेकंड विच इज़ इन माय सिलेबस इज़ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. ये 2 चैप्टर एंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई नो कि वो चैप्टर कितना छोटा है. लाइक उसका मोस्टली पार्ट तो सब ओमिटेड है, जस्ट पहला पार्ट ही आने वाला है, तो इट इज़ लाइक वेरी काइंड ऑफ वेरी स्मॉल चैप्टर. एंड ये जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, ये तो हमने ऑलरेडी पीटी में पढ़ ही रखा था, तो ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत लगानी नहीं थी. तो ईजी से स्टार्ट करो, सो इट्स बेटर. दैट्स व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, स्टार्ट फ्रॉम ईजी. सो हाँ हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया था एंड देन आई एट दिस टुक अ ब्रेक एंड एट दिस फ्राइड राइस. वेल मैं मेरी प्रिपरेशन का सब कुछ तो शूट कर पाऊँ, दैट वाज वेरी टफ बिकॉज टुमारो इज माई एग्जाम एंड आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, और उसके साथ शूट करना इट वाज काइंड ऑफ टफ, तो मैं ये तो शूट नहीं कर पाई. बट आई मेड दीज नोट्स. ये ना हुआ क्या था, वैसे नोट्स बनाने का कुछ था नहीं, बट एज आई वॉज रीडिंग और मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से मुझे जो भी समझ में आया आई रॉट डाउन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाट यू कैन ऑल्सो डू. एक पढ़ो और उसके साथ साथ जो भी समझ में आया उस पैराग्राफ में से जस्ट पॉइंट्स में लिख दो, तो उससे चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो द सेम यू कैन डू. एंड हाँ ये 4-5 पेज नोट्स कब बन गए मुझे पता भी नहीं चला. देन येस आई एम डन विद दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नाउ आई हैव टू डू मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है. एंड दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये भी मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाली क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड जितना अच्छा मुझे रीड करके समझ में आता है उतना अच्छा वीडियो लेक्चर्स देख के नहीं आता है. बट इन दिस वीडियो आई शो यू गाइज कि वीडियो लेक्चर ने मेरी कितनी मदद करी. सो या आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग द चैप्टर एंड ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे एक देश से दूसरे देश डिसीज़ ट्रांसफ़र हुई है, फूड कल्चर एंड एवरीथिंग हाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड. काफ़ी ईजीली काफ़ी ईजी चैप्टर था, मुझे ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं, 15 मिनट में तो मैंने पूरा रीड करके ही ख़त्म कर दिया था इस चैप्टर को. फिर बस मेरा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी हो गया था एंड फाइनली आई एम डन विद बोथ द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री. एंड हिस्ट्री का सिलेबस मेरा हो गया है एंड इसी के साथ साथ मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था दिन में, बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट दैट.
फिर मेरा हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स हो गया था. सो इन द इवनिंग आई स्टार्टेड विद जोग्राफी, एंड जोग्राफी से इन टोटल पूरे 4 चैप्टर आने वाले हैं. इसमें से जो पहला चैप्टर है इट वाज पार्ट ऑफ माय PT1 सिलेबस, तो वो तो मुझे कुछ हद तक आता है, बट देन जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं वो मुझे नहीं आते हैं. सो फर्स्टली आई स्टार्टेड टू गो विथ चैप्टर 4 विच इज़ एग्रीकल्चर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है. इसमें काफ़ी कुछ काफ़ी डिस्क्रिप्शन है एक क्रॉप के बारे में, एंड उसके एक फैक्टर एक्स के बारे में, एंड टेम्परेचर एंड everything. So I thought to better start with chapter 4 which is agriculture. So it was the time I just showed you, it was 7:34 and मैंने अपनी पेंसिल निकाली, and फिर the best solution I found was to watch a video lecture. फिर मैंने दिगराज सर का जो एग्रीकल्चर वाला रैपिड रिविजन है, जो कि काफ़ी छोटा है, लाइक इट इज़ जस्ट ऑफ 11 to 12 minutes, एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ इन 11 to 12 minutes में जो मुझे ये चैप्टर समझ में आया ना, इतना अच्छे से समझ में आ गया. लाइक मुझे लग रहा है कि यार रैपिड रिविजन में चीज़ मिस क्या हुई है, सब कुछ एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई. तो साथ साथ व्हेन दिगराज सर वाज टीचिंग ऑल दैट, मैं साथ साथ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट लग रहा था वो सब मैं लिखते भी जा रही थी, बिकॉज इट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग, लिसनिंग टू समथिंग, एंड इफ यू राइट द सेम, सो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, एंड काफ़ी टाइम तक याद रहेगी. सो आई डिड द सेम, कुछ ग्रेन्स, पल्सेस एंड इन सब के बारे में जो जो भी बताया था, एंड बहुत अच्छे से बताया था, एंड बीच बीच में ना मीम्स भी डाल दी थी, जिससे मुझे जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. एंड मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि उन्होंने इस चैप्टर का जो डिटेल वीडियो डाला है उसमें भी चैप्टर का एक एक कोना निकाल लिया, लाइक बहुत अच्छे से समझाया है. तो अगर मेरे पास टाइम नहीं था, अगर मेरे पास टाइम होता तो आई कुड हैव स्टडीड, बट टाइम नहीं था तो ऑब्वियसली मुझे रैपिड रिविजन देखना पड़ा. फिर बस ये करते एग्रीकल्चर चैप्टर हो गया था, क्योंकि मैंने दिगराज सर का वीडियो लेक्चर देख लिया. उसके साथ साथ ऑल इन वन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, विच वर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस. तो हाँ, ऑल इन वन से और दिगराज सर से एग्रीकल्चर तो इतना अच्छे से हो गया, लाइक इन द बेस्ट वे. एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर विच आई हैड टू डू वाज वाटर रिसोर्सेज, जो कि चैप्टर काफ़ी प्रैक्टिकल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि ये स्कूल में पढ़ाया गया था, तो मुझे याद है ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है इस चैप्टर में. तो मैंने सोचा था कि हाँ चलो इसको पढ़ती हूँ, बट बिफोर दैट आई रियलाइज कि मैंने अभी तक उनके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SST के लिए तो देखे ही नहीं. सो आई सर्च दैट, क्योंकि मैंने मैथ्स में लाइक मैं पढ़ के गई थी, बट बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी, इस वजह से मेरा मैथ्स का पेपर उतना ठीक ठाक गया. बट मैं साइंस में पढ़ के गई थी, एंड मोस्टली क्वेश्चंस वर फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो मुझे लगा कि SST के लिए भी आई शुड गो विद दिस. तो SST के लिए भी मैंने ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लेक्चर निकाला. एंड ये वैसे काफ़ी बड़ा, लाइक क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम थी, एंड उसके साथ साथ इतने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना था, दिखाना, तो इट वाज लाइक ऑफ 1.5 आवर, इतना लंबा था ये. तो मैंने फटाफट से 1.75x में निकाला वीडियो, एंड बड़ी ही फास्ट स्पीड में मैंने पूरा वीडियो लेक्चर देखा. तो मैं साथ में देख रही थी, एंड एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रही थी, ताकि वहीं पर मेरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए. एंड जो टॉपिक उन्होंने लाइक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने कुछ लिख भी लिए थे, ताकि मुझे सुबह जब टाइम मिले तो इन सारे टॉपिक का एक बार क्विक रिविजन कर लूँ. तो क्योंकि ये टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर सुबह सुबह इनका रिविजन कर लूँगी ना तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएंगे. तो बस वो टॉपिक्स लिखे, और बाकी जो भी थे वो मैं वहीं पर समझती जा रही थी. दिगराज सर समझा रहे थे, क्वेश्चंस बता रहे थे, काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड उन्होंने हर चीज़ बताई कि किस टाइप से, किस मोड से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अंडरस्टूड ऑल दैट, एंड वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज कि आप भी देखो यार. ऑल मेरी ऑडियंस तो देखती होगी यार, आप सब तो देखते होंगे. मैं ही वीडियो लेक्चर्स अटेंड नहीं करती थी, एंड आज अटेंड करें, एंड गॉट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो लेक्चर्स. लाइक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है यार. बाय द वे, वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ये जस्ट मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ, दैट हाउ लाइक दिगराज सर एंड शोभित सर एंड प्रशांत सर, इनके वीडियोज़, इनके वीडियो लेक्चर्स, एंड ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़, ये कितनी बेनिफिशियल हो सकती है आप सबके लिए. दिस इज़ व्हाट लाइक माई पर्सनल व्यू आई एम टेलिंग विथ यू गाइज. एंड ये जो शोभित सर का मैथ्स का जो लेक्चर था, लाइक 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने उतने अच्छे से नहीं देखा था, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि इन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बता दिए थे कि कैसे क्या सब कुछ आने वाला है. तो अगर मैंने अटेंड किया होता तो शायद मेरा मैथ्स का पेपर और अच्छा चला जाता. उसके बाद जो ये प्रशांत सर का जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस के रिलेटेड, साइंस के थे, तो भाई ये तो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए थे, एंड स्पेशली ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. यार इतने सिमिलर क्वेश्चंस आए थे. आई वाज लाइक आई एम ग्लैड कि मैंने ये क्वेश्चंस लाइक देख लिए थे, जब बिफोर माय साइंस एग्जाम, साइंस की प्रिपरेशन करते टाइम मैंने ये क्वेश्चंस देख लिए थे. तो यार नेक्स्ट टॉपर्स टीम शोभित भैया, दिगराज सर एंड प्रशांत भैया, इन तीनों के वीडियो लेक्चर्स इतने अच्छे होते हैं, लाइक या. तो बस फिर ये किया, एंड उसके बाद मुझे पॉल साइंस भी करना था, बट आई
वॉज नॉट एबल टू शूट ऑल दैट एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट स्टिल अभी मेरा पूरा एक सब्जेक्ट बचा हुआ था एंड इवन जोग्राफी का भी 1-2 चैप्टर बचे हुए थे, तो वो मुझे सब करने थे जैसे तैसे करे, या तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी और तब करे। एंड मेरे पॉल साइंस में टोटल 4 चैप्टर्स आ रहे थे, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म एंड जेंडर कास्ट एंड पॉलिटिक्स, सॉरी जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 4 चैप्टर मुझे पूरे करने थे। सो गाइज, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू बी योर ऑनलाइन स्टडी बडी। सो हम लोग पूरा बोर्ड्स तक एंड हर एग्जाम साथ में देंगे, प्री बोर्ड्स एंड उनके रिव्यूज। सो आई एम गोइंग टू बी योर ऑनलाइन स्टडी बडी। सो येस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी आर गोइंग टू enjoy this journey a lot. So yes, if you're, thanks for watching the video till end, and yeah, see you next video. तब तक के लिए bye bye.